Afternoon, everyone. Welcome in the class of business studies. So we were having a revision of chapter number 8, right? Chapter number 8, small business and entrepreneurship. We were revising the chapter and we have till yet revised the meaning, concept and need of entrepreneurship. I'm giving you a quick recall of the process of entrepreneurship. Then after we will start a new concept, that is Startup India. Have a look. Process of entrepreneurship, it is very simple. The first important thing is that you have to learn the process in a proper sequence. It is compulsory to learn the points in a proper sequence. Step by step learn करनी जरूरी है. First point देखिए, it is self discovery. It means if you want to start a business, आपका खुद का business, तो सबसे पहले you need to check whether you are capable of doing a business or not. क्या आपके अंदर वो strength है? क्या आपके अंदर वो power है कि आप risk bear कर सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी capabilities है कि आप risk bear करके नया business शुरू कर सकते हो? कल याद होगा वीडियो में हमने देखा था, क्या आपको दूसरे की प्रॉब्लम से पेन होता है? क्या आपको दूसरे की प्रॉब्लम समझ भी आती है क्या? तभी आप बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, राइट? तो वी हैव टू जस्ट डिस्कवर आवरसेल्फ, वी हैव टू चेक व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स इन आवरसेल्फ, ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल, और फिर हम डिसीजन लेंगे वेदर वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और नॉट. तो देखिए, बुक की लैंग्वेज में बहुत आसान सी बात कह रहे हैं. Under this step, the entrepreneur assess what are his strengths and weaknesses, what all he enjoys doing and his work experience. उसकी क्या strength है, उसकी क्या weaknesses है, क्या काम करना उसे अच्छा लगता है और क्या उसका work experience है. Number 2. Now, once I have decided to be an entrepreneur, I need to identify the various opportunities available in the market. मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या क्या options available है, right? Options देखते टाइम मुझे society की problems का analysis करना है, मुझे देखना है what are the problems faced by different members of society. तो देखिए, under this step he tries to find out the need, want and problem. These are the key words of second point. Need, want and problems of people, so that their needs can be fulfilled, so that their problems can be solved. A businessman always comes with a commodity or a service which is capable of solving the problems of consumer or fulfilling their needs or wants, right? So you need to get an opportunity to overcome the problems of members of society. Now, after identify the opportunity, I need to generate and evaluate new ideas to grab the opportunity, right? I need to think upon the opportunity. मैं उस problem पे सोचूंगी, विचार करूंगी, and I will think upon it. I will try to find the solution of the problem of people. मैं नए नए ideas generate करूंगी अपने दिमाग में कि कैसे लोगों की इस problem को खत्म किया जा सकता है. ये आइडियाज मैं कैसे फ्रेम कर सकती हूँ? किसी से डिस्कस कर लिया, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अलग अलग जगह दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी, अपना एक्सपीरियंस यूज किया, और इनको यूज करके मैंने न्यू आइडियाज जनरेट किए टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड मीट द एक्सपीरियंसेस, मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट? आगे देखिए. Now, once I have find the idea कि I am now with the idea of starting a business and I have just planned to grab the opportunity. Now I will plan how to start the business. I will plan how I will be starting the business, how I will be running my business. इन सब चीजों से related planning शुरू हो जाएगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Under this step, the entrepreneur conducts research, he makes business plans and strategies. आगे देखिए. Now, after planning, I will raise the startup capital. यानी मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो पैसा अरेंज करना शुरू करूंगी. We have already discussed in chapter number 7 that finance is required for starting a business. आपको अगर बिजनेस शुरू भी करना है ना, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा. बिना पैसे के you can't start a business, right? तो I will plan regarding the बिजनेस, और मैं ये प्लान करूंगी कि कैसे बिजनेस शुरू किया जाए. नेक्स्ट प्लान के बाद रेजिंग अप कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कैपिटल अरेंज करना शुरू कर दूंगी. एंड नाउ वंस आफ्टर आई हैव गॉट द स्टार्टअप कैपिटल, नाउ आई विल स्टार्ट माय बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद आई विल जस्ट
try to make profit in my business and then my business will grow. Entrepreneur try to grow and expand the enterprise. तो स्टार्टअप किया, स्टार्टअप के बाद ग्रोथ की। अब जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो कुछ बिजनेसमैन उस मनी को हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब होता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेल कर देना, ठीक है, उसकी रिवॉर्ड को फर्दर इन्वेस्ट कर देना। बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लग गया, बहुत प्रॉफिट हो रहा था, अब मैंने अपने इस बिजनेस को सेल किया और बिजनेस से जो रिवॉर्ड मुझे मिली उस रिवॉर्ड को फर्दर नए बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। नंबर वन, number one, self discovery, then identifying the opportunities available, then generating and evaluating the various ideas to grab the opportunity, planning for the business, raising startup capital, startup growth and harvest. Now, after discussing the process of entrepreneurship, we have to discuss about the Startup India scheme. Startup India scheme क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 15 अगस्त 2015 में उन्होंने कहा कि इंडिया में एक ऐसा प्लान होना चाहिए, एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिससे बिजनेसमैन को कुछ हेल्प मिले टू स्टार्ट देयर बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, प्रमोट करना, नर्चर करना उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो इसी आइडिया के साथ उन्होंने लॉन्च किया न्यू कंसेप्ट स्टार्टअप इंडिया स्कीम के नाम से। डेट यू हैव टू रिमेम्बर 15 अगस्त 2015। किसने अनाउंसमेंट किया इस स्कीम के बारे में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कहा इन्होंने कि स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा एक्शन प्लान है जो हमारी इकोनॉमी में एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो एंटरप्रीनियरशिप को स्प्रेड करने के लिए जरूरी है। एंटायर नेशन में एंटरप्रीनियरशिप को स्प्रेड करने के लिए हम जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सॉरी, जो स्कीम बना रहे हैं, उस स्कीम का नाम स्टार्टअप इंडिया है। क्या है? स्टार्टअप एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन को हम डालेंगे। इस कैटेगरी में वो सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस आएंगी जो प्राइवेट लेवल पे काम कर रही है, वेदर इट इज अ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन तीनों को लेंगे। हमने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को और जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस को नहीं लेना है, हमें पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटर को और जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी को लेना है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो इन तीनों के फॉर्म में हो, इंडिया में रजिस्टर हुआ हो और स्टार्ट हुआ हो या तो 2015 के बाद या फिर इससे 5 साल पहले के टाइम पीरियड के अंदर अंदर, यानी लेस देन 5 years फ्रॉम दिस डेट, ठीक है, उससे पहले शुरू हुआ हो, 5 years तक, 2015 के पिछले 5 साल के अंदर अंदर शुरू हुआ हो और स्टार्टिंग से लेके आज तक किसी भी साल इस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ को एक्सीड ना कर रहा हो, तो उसको हम स्टार्टअप की कैटेगरी में डालेंगे। यानी स्टार्टअप कोई भी ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज है जो 2010 के बाद सेटअप हुई है और जिसका एनुअल टर्नओवर रुपीज 25 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है और जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? नंबर वन, एंटरप्राइज अपने इंडिविजुअल बेसिस पे बनी होनी चाहिए, किसी दूसरे बिजनेस को स्प्लिट करके या किसी दूसरे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बनाया गया हो। नंबर टू, एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा कभी भी ना रहा हो, किसी भी ईयर में, बिजनेस के बनने के बाद किसी भी साल में एनुअल टर्नओवर रुपीज 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए कुछ स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी है। देखिए क्या क्या स्कीम्स है। नंबर वन, नो इंस्पेक्शन। जो भी नया बिजनेस सेटअप होगा शुरू के 3 साल तक उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कोई लेबर लॉज रिलेटेड रूल्स नहीं, कुछ भी नहीं, केवल उस बिजनेस को अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी मैंने खुद को चेक करके एक सर्टिफिकेट रेडी कर लिया, यस माय एक्टिविटीज आर परफेक्ट, आई एम नॉट चीटिंग विद एनी ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मेरे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं आएगा, बट ओनली इन द इनिशियल 3 years। नंबर टू, रजिस्ट्रेशन। मेरे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया 2016 में, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि एक दिन में बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकता है। एक सिंगल विंडो होगी जिससे क्लियरेंस, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। रीड कर लेते हैं पहले इन 2 पॉइंट्स को, देखिए।
The government of India is taking lot of steps to encourage startup projects. Common schemes or benefits offered by government are, क्या क्या common benefits है? Number one, we have already discussed, no inspection. Under this scheme, no inspection would be carried out at startups for 3 years regarding labor laws, etc. As they need only self-certification. बाहर से inspection नहीं होगा, but you need to prepare your self-certificate, right? Next, number two, registration. The government has launched a mobile app in April 2016 and a portal that will allow startup to get registered in one day only. एक ही दिन में registration हो जाएगा. In addition, there will be a single window for clearance, approvals and registration. एक ही साथ clearance, registration और approvals हो जाएंगे. Next देखिए, इनकम टैक्स एग्जैम्पशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी. एग्जैम्पशन का मतलब है छूट. मेरी इनकम पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स पे मुझे 3 साल तक की छूट मिलेगी. ठीक है, बट ये मुझे एग्जैम्पशन मिलेगा तभी जब मुझे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का अप्रूवल मिल गया हो. इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा. अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट है तो ही मुझे इनकम टैक्स एग्जैम्पशन मिलेगा. विदाउट द सर्टिफिकेट आई कांट अवेल द इनकम टैक्स एग्जैम्पशन. ठीक है, आगे देखिए. कैपिटल गेन टैक्स एग्जैम्पशन. अगर मेरी किसी भी एसेट को सेल करके मैंने कोई भी प्रॉफिट अर्न कर लिया तो वो कैपिटल गेन होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एंड आई एम एबल टू सेल द मशीनरी एट ₹60,000. 50,000 की बुक वैल्यू की मशीन को मैं 60,000 में बेच पा रही हूँ. तो ये जो 10,000 का मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, इस बेनिफिट को कैपिटल गेन कहते हैं. स्टार्टअप इंडिया के केस में ये कैपिटल गेन पे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. अदरवाइज गवर्नमेंट इस पे टैक्स लिया करती है. बट अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है तो गवर्नमेंट आपसे इनिशियल 3 इयर्स कोई भी टैक्स नहीं लेगी. नेक्स्ट, बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पेटेंट क्या है? अपने नए इन्वेंशन को प्रोटेक्शन जो बिजनेसमैन ने दिया है वो पेटेंट है, राइट? मैंने कुछ भी नया इन्वेंट किया, आई वांट इट टू बी सेफ, आई वांट दैट नो बिजनेसमैन शुड बी अलाउड टू कॉपी माय इन्वेंशन, आई शुड बी द ओनली पर्सन टू यूज दिस, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया है. तो ऐसे में मुझे पेटेंट करवाना पड़ेगा. पेटेंट की कॉस्ट काफी हाई होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है पेटेंट ऑब्टेन करना. यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि इफ यू आर अ स्टार्टअप and you want to obtain a patent तो गवर्नमेंट आपको 80% डिस्काउंट दे देगी. पेटेंट की जितनी भी लीगल फीस है उसका केवल 20% आपको देना पड़ेगा. गवर्नमेंट आपको क्या देगी? 20% रिबेट देगी. तो रीड कर लेते हैं ये 3 पॉइंट. इनकम टैक्स एग्जैम्पशन हमने रीडिंग कर ली है क्या? आई डोंट रिमेम्बर. इनकम टैक्स एग्जैम्पशन इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 ईयर. दिस एग्जैम्पशन इज अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. Next, capital gain tax exemption. The startup can claim capital gain tax exemption also for first 3 years. है सिर्फ 3 सालों के लिए. Benefit in patent and intellectual property. In patent cost, startup can claim an 80% rebate. That means if a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees. जितनी भी फीस है उसका 80% rebate. Even faster patent registration and protection for intellectual property right are also provided under this scheme. इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन हम फास्टर और क्विकली करवाएंगे और आपको कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देंगे. आगे देखिए, फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो ₹10,000 करोड़ फंड न्यू स्टार्टअप्स के लिए साइड में रख रही है और ₹500 करोड़ का फंड उन्होंने साइड में रखा है किसी भी बिजनेस को क्रेडिट गारंटी चाहिए तो उसके लिए. ठीक है, क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए तो उसके लिए. Even foreign aid is also provided to startups. For example, SoftBank in Japan invested $2 billion in Indian startup. Foreign companies को भी गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है to invest in the startups of India. ठीक है, क्या पढ़ा हमने? देखिए, नंबर 1, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज तो इनिशियल 3 इयर्स पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू. इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में भी 3 साल तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा.
पेटेंट के अंदर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और गवर्नमेंट आपके लिए साइड में फंड रख रही है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप्स टू रेज द स्टार्टअप कैपिटल। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल आपको चाहिए उसको अरेंज करने की क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वेरी सिंपल, सेल्फ फंडिंग। सबसे ज्यादा डिपेंडेबल है हम खुद। हमें जब सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है तो हम खुद अपनी सबसे ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि आप खुद अपना पैसा सेव करो और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करो इनिशियली। फिर अगर आपको लग रहा हो कि बिजनेस रिटर्न दे रहा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो बाद में आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Following are the list of 10 funding options for startup to help raise capital. Number 1 is self-funding. To start a business, self-funding is the first option. On later stage, investors may get attracted. सबसे पहले self funding किया और बाद में investors को भी attract करा जा सकता है। नंबर 2 इज क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग जनरली एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप फंड अरेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, जनरल पब्लिक को बताना है रिगार्डिंग योर आइडिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद बिजनेस नहीं करना चाहते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट वो इंटरेस्टेड होते हैं टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। तो ऐसे में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या किया आपने, अगेन अपना आइडिया प्रेजेंट कर दिया। अब लोग आपके आइडिया को देख रहे हैं। आपके आइडिया में अगर उनको लग रहा है कि दम है, यानी ये आइडिया बहुत अट्रैक्टिव है, ये प्रॉफिट अर्निंग है, प्रॉफिट अर्निंग की कैपेबिलिटी है इस एंटरप्रेन्योर में, तो ऐसे में वो या तो आपको लोन दे देंगे या आपका सामान परचेज करने का आपको ऑर्डर दे देंगे कि भाई आप जो गुड्स बनाएंगे वो गुड्स हम परचेज करके या तो उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करेंगे या फिर उन कमोडिटीज को रीसेल करने का काम शुरू कर देंगे। तो वो आपको ये भी कह सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कह सकते हैं कि हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें रेगुलर रिटर्न देते रहना। तो ऐसा किसी भी फॉर्म से वो आपके मनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। Crowdfunding is one of the newer ways of funding a startup that has been gaining a lot of popularity lately. अभी शुरू हुआ है। It's like taking a loan, pre-order contribution or investment from more than one person at the same time. मैंने किसी इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को एक ही साथ अप्रोच किया है। Now, this is how it works. An entrepreneur will put up a detailed description of his business on a crowdfunding platform. आपने अपने बिजनेस का एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने बता दिया आपके गोल क्या है, आपके टारगेट्स क्या है। देखिए, he will mention the goals of his business plans for making a profit, how much funding he needs and for what reasons, etc. And then investors can read about the business and give money if they like the idea. अगर इन्वेस्टर को लगता है कि आइडिया बढ़िया है तो वो पैसा दे सकते हैं। Those giving money will make online pledges with the promise of pre-buying the product or giving a donation. जिन लोगों ने पैसा दिया है वो ऑनलाइन प्लेज लेंगे, या तो वो आपसे प्रॉमिस करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, या वो आपको डोनेशन दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, व्हाटएवर दे आर डूइंग। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट मनी टुवर्ड्स हेल्पिंग अ बिजनेस दैट दे रियली बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस पे आपको ट्रस्ट है तो आप उस बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके अलावा ये एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, ये सब हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड मेक श्योर आपको इस पे रिसर्च करनी है, आपको देखना है कि कैसे स्टार्टअप वर्क करता है। राइट, हम इस पे कुछ एक्टिविटीज जरूर करेंगे इस चैप्टर पे, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।